Hello, friends. Myself, Dr. Ankur Jain, Faculty of Biochemistry at Cerebellum. Today, we have Dr. Rahul Saini, who have secured 188 marks in this FMG. So, congratulations, first of all, Dr. Rahul. Thank you so much, sir. Thank you. So, how are you feeling Sir, I don't now? have any words to like thank you and sir, feeling very blessed. All the hard work, all the efforts are like uh, can't express in words, sir. Thank you so much. Thank you. So, when you started your journey of preparation for this, Sir, basically, I started like uh, in July from the cerebellum, and we started like from the batch like July 14th, the first batch. And okay. in lab 2, lab 1, lab 2, lab 3, all the labs I did, sir. So, you attended the all live classes, no means in real time. Yes, sir. All the live classes I've attended in the real time. I didn't skip any single class, and if I skip one class or two, maybe then I'll cover it the next morning. Like I have Okay. done all the late night PYQs on time, all the GTs, all the mocks, and all the classes, sir. सो व्हेन वी स्टार्ट प्रिपरेशन अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारे जूनियर्स तो उनका Yes, sir. बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन उस टाइम पे जब हम जीटी देते हैं तो मार्क्स थोड़े कम आते हैं बड़ा ही स्वाभाविक Yes, है ये sir. बड़ा कॉमन है तो उस टाइम Sir, पे you face, हाँ जी. हाँ, तो क्या उसको किस तरह से परसीव करना चाहिए और किस तरह से उसको कि पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ना है कुछ उसके बारे में From the very starting, like from the first year of my MBBS, I studied. I like never skip any of the classes in the university also. I was a very consistent student. But thereafter also, like when I started the preparation in cerebellum, and when I give the first JT, the second JT, the third JT, my score is like below 150 every हम्म time. I did एवरी so efforts, made so much efforts like to cross that 150 barrier, but हम्म I was not able to. But there is like one thing in my mind which is very consistent. I have to do the hard work. I will not care of the marks. I will just do my efforts and will go on the process. Then after, sir, like in the first JT, second JT, and third JT, I scored very less marks. But हम्म in the JT4, I like crossed the barrier of 150. But in mocks also, sir, I scored very less, like 160, 160, 170, 168. In the last mock, I scored 168, sir. हम्म But then my morale got very down. Like it's very less marks. How can I do it? I got very much anxiety. But एक ही बात थी सर मन में कि बस करना है, यही अटेम्प्ट है, फर्स्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट है, इसके बाद नहीं देना मेरे को एग्जाम. मेरे ओके में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं सेकंड अटेम्प्ट दूं. तो बिल्कुल उसी डेडिकेशन से, उसी एफर्ट से सर मैं दिन रात लगा रहा, बिल्कुल एकदम टिल द एंड मोमेंट. आई लाइक स्टडीड एंड आई स्कोर्ड द स्कोर ऑफ 188. रियली नाइस तो एक बड़ा मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगा ऑन द बिहाफ ऑफ राहुल कि शुरू में जो जीटी के मार्क्स हैं उनसे डिप्रेस नहीं होना है दैट इज़ लर्निंग फेज शुरू में कम मार्क्स आ रहे हैं तुम लर्न कर रहे हो क्या क्या मिस्टेक्स तुम करने वाले हो इन फ्यूचर वो अभी से तुम कर रहे हो और उसे इम्प्रूव कर रहे हो और यस सर. अपने बारे में कुछ ड्यूरिंग एमबीबीएस कुछ ऐसी चीज जो अजीब सी हुई हो जैसे कि तुमने यूक्रेन से किया है एमबीबीएस तो वो फेज यस सर. में भी है तुमने स्टेबल रखा तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताओ Yes, sir. So basically, sir, I started my MBBS journey in the year 2019, हम्म and like first 3 years I've completed in Ukraine. Like in year 22, uh, सबको पता है कि वॉर हो गई बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. एंड उस वॉर से सर हम भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए. एंड उस वॉर की वजह से कि क्या क्या चीजें फेस करी हमने उस टाइम पे.
बट उन सारी चीज़ों के बावजूद लाइक इंडिया आए, आके वो बहुत डिप्रेसिंग टाइम रहा सर, 6 महीने 8 महीने का। देन एक मेजर डिसीजन लिया कि अब ट्रांसफर लेना पड़ेगा। So my first 3 years of MBBS will be in Ukraine, and next 3 years in Russia, sir. In Ukraine, sir, I was in Vinnytsia National Medical University, and when I took transfer in Russia, I was in Northern State Medical University. So I basically graduated in from Northern State Medical University, sir. ओके। तो Yes, sir. उस फेस में भी आपने अपनी हिम्मत मेंटेन की और उस फेस से बाहर निकल Yes, के आए प्रिपरेशन, यानी कि ड्यूरिंग एमबीबीएस भी तुमने एक स्ट्रगल की है लाइफ में। yes, sir. बहुत बहुत ज्यादा किया है। गुड गुड। अच्छा, ये बताओ कि जो पीवाई टॉपिक्स होते हैं उसकी कितनी सिग्निफिकेंस रहती है हमारी Yes, प्रिपरेशन sir. में। यदि हम इस बार के एग्जाम सर को देखें बहुत बहुत ज्यादा। हाँ जी। तो कितने परसेंट तुम सोचोगे कि पीवाई टॉपिक्स कवर होते हैं या वहीं से आता है। सर बेसिकली अगर इस एग्जाम को देखें तो लाइक अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 की बात करूं, सो पेपर हम्म। 1 वाज लाइक क्वाइट इजी फॉर मी, वाज हम्म। डूएबल, बट when I go to the paper 2 exam, it's very tough. It's very very tough. Like when I came and talked to my friends out there in the exam center, they also said like paper 2 was very tough now. And हम्म। after giving the exam, when I came out, the final exam like paper 2, I was like again very depressed. I don't know I will pass or fail. Be frank, I will not हम्म। like pass or fail, sir. But एग्जाम अच्छा गया, एंड उसमें सारा रोल जो था सर वो पीवाईटीज का भी था, कुछ न्यू लर्निंग का भी था। सो पीवाईटी सर अगर मैं बोलूँ लाइक इन जनरल अराउंड 70% आर पीवाईटीज। हम्म। There are some new topics which will come every exam like they will come. बट आपको उस बात पे कंसिस्टेंट रहना है कि मैंने क्या प्रिपरेशन करी है, कैसी प्रिपरेशन करी है, एंड अपनी प्रिपरेशन पे सर आपको कॉन्फिडेंट होना है बस। हम्म। दैट्स ऑल व्हाट आई मैटर्ड, एंड मैंने बस इस चीज पे फोकस करा सर। लास्ट तक लगे रहे और कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ, डेफिनेटली इस बार क्लियर यस, होगा। यस सर। व्हाइल गिविंग द पेपर 2 एग्जाम आल्सो बहुत ऐसे डाउन्स आए कि पता नहीं क्या हो रहा है, एग्जाम सही जा रहा है नहीं जा रहा है, हम्म। क्या क्वेश्चन के आंसर करूं नहीं करूं। बट आपने एक बात बोली थी सर, मेरे को आज तक याद है कि माइंड को ओवरथिंक मत करो, जो आंसर लगा है वो बेस्ट आंसर है, एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट आंसर। एंड आपने एक और बात बोली थी सर कि कभी ध्यान रखना एंड आगे बढ़ते रहना बस। गुड। रियली नाइस। तुमने देखो, फॉलो करना है, तुम अपने आप में मन में विश्वास बनाना है कि हाँ, हम कर सकते हैं। और कोई भी मेंटर हो जो तुम्हें बात बताता है वो अपने एक्सपीरियंस से बताता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि यदि तुम उसे पॉजिटिव लो तो डेफिनेटली वो विश्वास से ही तुम सक्सेस की तरफ चले जाते हो। अच्छा, एक बात और, मैं बड़ा ही यस सर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है अबाउट सोशल मीडिया, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते हैं, रील शॉर्ट्स देखते हैं। तो उसके बारे में तुमने कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट था तुम्हारा, और यदि नहीं था तो कैसे बचे, और था तो कितना टाइम लगाया। यस। लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि एफएमजी के एग्जाम है, एंड मैं लाइक स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था पढ़ाई में। तो मेरी भी थॉट थी कि बहुत आराम से एग्जाम पास हो जाएगा, एंड आई टुक इट इन अ लाइट वे, frankly speaking. But when you'll start preparing, when you'll see the content, the vast content, then you hit the reality. And after some time, I was also using the social media. I will not say a lie. Uh, but after some time, like month or two, I like मैंने अपने माइंड पे पूरा वो बना लिया था कि मेरे को सोशल मीडिया यूज नहीं करना है अब। एक फुल डेडिकेशन थी कि मेरे को अपने एग्जाम पे प्रिपरेशन करनी है एंड कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं सर जब मैं क्लासेस करता तो क्लासेस के करने के बाद में, डिनर करने के बाद में मेरे को सोने के लिए बहुत टाइम लगता था।
हम्म। तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक स्क्रोलिंग द इंस्टाग्राम। बट मेरे को एक टाइम पे हिट हुआ कि अगर यही चीज चलती रही तो आगे जाके चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। देन हम्म। एट दैट मोमेंट ओनली मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। बिल्कुल एट फ्रॉम दैट डे एंटिल नाउ मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है। मंथ हो गया एग्जाम हुए, अभी तक मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं करा, अभी तक भी। चलो। सो अब गुड। वो सर आदत आदत छूट गई है वो इंस्टाग्राम चलाने की, एंड वो बहुत अच्छी आदत है मेरे को लगता है। तो सो हम्म। अब वो छूट गई है सर बिल्कुल। और ये सर बहुत बहुत ज्यादा इस चीज ने हेल्प करी मेरी प्रिपरेशन में, बहुत ज्यादा। सो इन केस यू हैव टू डू, इफ यू थिंक यू आर लाइक आपको करना ही है, देन आपको सोशल मीडिया सर छोड़ना पड़ेगा, दैट्स द ट्रूथ। बहुत बच्चे बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया से पढ़ते हैं, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। वी ऑल वेरी नो दैट सोशल मीडिया इज लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल। उसको हम कम कर सकते हैं, हो सके तो बंद कर दो। दैट्स द यस। बेस्ट थिंग। कि कुछ टाइम की बात है, जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, या तो तुम्हारी इच्छा ही नहीं करेगी, जैसे राहुल की नहीं कर रही, और यदि नहीं यस कर सर। रही तो अच्छी बात है। यू शुड यूज दैट टाइम इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। यस। और Even sir, नेक्स्ट। I haven't seen the photo of mine to the cerebellum group in the Instagram right till now. वो तो दे दो यार। I will send it, sir. ओके। ओके डियर। रियली, यदि हम बात करें तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा है, और इससे बहुत सारे मैसेजेस स्टूडेंट्स के पास जाएंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि हाउ टू हैंडल ऑल दीज Yes, sir. स्ट्रेस, और जो एस्पेक्ट्स हैं प्रिपरेशन की। और कोई मैसेज Yes, तुम sir. अपने जूनियर्स को देना चाहोगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट में, बिल्कुल सर एक दो लाइन। मैसेज, यस बिल्कुल सर, शॉर्ट में मैसेज यही होगा कि अपनी प्रिपरेशन को किसी और की प्रिपरेशन के साथ कंपेयर मत करना कभी भी। हम्म। बी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रिपरेशन टिल द एंड, टिल द एंड। आपकी प्रिपरेशन होगी, आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स होगी एंड आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग होगी, यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। But just don't compare the preparation of your to the other preparations. रियली नाइस एडवाइस। बहुत बहुत आराम से एग्जाम क्लियर हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन डियर, बेस्ट विशेस फॉर थैंक फ्यूचर। यू सो मच सर, टेक केयर। टेक केयर। थैंक यू सर। एंड सर माय पेरेंट्स वुड लाइक टू टॉक टू यू। ओह, डेफिनेटली डेफिनेटली। जी सर। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इस। थैंक यू सो मच सर। आपको भी बधाई हो कि आपका थैंक यू। स्टूडेंट आज काबिल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की सक्सेस में, और आपके सपोर्ट से ही, आपके गाइडेंस से, आपके संस्कार से ये आज इस बहुत बड़े अचीवमेंट को हासिल कर पाया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू सो मच सर, एंड वी आर स्पेशली थैंक्स टू सेरिबलम। आप लोगों की मेहनत थी सर, जो रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक जग करके आप लोगों ने इनके साथ वो टाइम लगाया। और आज आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की दुआओं से ये बच्चे कामयाब है सर। बिल्कुल। आपकी मेहनत भी है और बच्चों की मेहनत है। बच्चों की मेहनत मेन है, और आपका आशीर्वाद, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। थैंक यू फॉर कमिंग। ओके। सर कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। सलूट है सर, आप लोगों को भी बहुत मेहनत की है सर। आप लोगों ने, जैसे राहुल बताता था कि रात को 2 बजे 3 बजे 4-4 बजे इन्होंने अपने डाउट्स आप लोगों के साथ क्लियर किए हैं सर। इतनी मेहनत सर वाकई कोई नहीं कर सकता। दिल से सलूट है सर, दिल से। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। ठीक है राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। मीटिंग सोन इन सैरिबेलम, एंड आपसे सब्सटेंस भी लेना है। हाँ बिल्कुल, सैरीबेलम में मिलना है, और तब एंजॉय करेंगे। सब्सटेंस लेना है सर। यस सर बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मिलेगा। ओके ओके डियर। सर, ओके ओके, सर। टेक केयर। थैंक यू सो मच कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सो अगेन। मच।